हेलो भाई, देयर आर ओनली 5 people। और सब कहाँ है? आई एम वेटिंग। एम आई ऑडिबल? ओके। तो भाई, देयर आर ओनली 5 people। इट्स ऑलमोस्ट 10 minutes। ओके, 16 participant, yes, now they are in। ओके। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज इतना इतना लेट क्यों है आप लोग? स्टिल सम आर इन वेटिंग रूम। ओके। So in previous lecture we discussed about chain and tape survey. We discussed about north. What is north? How to mention north? What is necessity to mention north? Okay, so that we discussed in our previous lab. Okay, so now further regarding to chain and tape survey.
Okay. Okay, now no one be allowed. Okay. So we discuss various instrument used in chain and tape survey. The instrument we have been discussed various instrument used in chain and tape survey. So which kind of the instruments used in chain and tape survey? So ranging rod, pack, chain. So there are different types of the chain. Okay, what is the length of ranging rod? It is 3 meter or 2 meter or 3 meter. Okay, now this is tape. So there are two types of the tape: steel tape and linear tape. Okay. Uh, what is chain line? Chain line, it is a line at which we want to find measure the distance. Suppose you want to find a length of the road. Okay, suppose आपको रोड की लेंथ मेजर करनी है, तो आप जिस लाइन पे टेप या चेन को लगाओगे, सो दैट लाइंस विल बी कॉल्ड एज चेन लाइन. ओके, तो या तो आप चेन से लेंथ मेजर करते हो या तो फिर स्टील टेप से. कांट वी यूज लीनियर टेप. ओके, बिकॉज उसमें क्या आती है, उसमें एरर रहने की पॉसिबिलिटीज होती है. तो वी कैन यूज ओनली स्टील टेप और चेन फॉर मेजरिंग दी चेन लाइन. Okay, chain lines are very long. Okay, suppose you want to measure a length of the road. Suppose the length is 500 मीटर. अगर उस रोड की लेंथ सपोज 500 और ग्रेटर देन 500 मीटर है. ओके, सो देयरफॉर सैगिंग ऑफ द टेप ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ इज वेरी हाई. अगर वो लीनर टेप होगी तो उसके अंदर और टेप का सैगिंग होने के चांसेस रहते हैं. Then we need to pull the tape from sides to reduce the sagging. If we use a linen tape, it will stretch and elongate very much than the steel tape. Okay, that's why hence the accuracy of the chain line is low of line लिलन टेप एज कम्पेयर टू स्टील टेप. मतलब स्टील टेप के लिलन टेप में क्या होता है, सेगिंग होने के चांसेस रहते हैं बिकॉज आपकी टेप क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है. ओके, लिलन टेप मतलब जो टेप जनरली टेलर्स यूज करते हैं, सो दैट काइंड ऑफ टेप इज नोन एज अ लिलन टेप. ओके, तो इंस्टेड ऑफ लिलन टेप फॉर मेजरिंग द चेन लाइन, for measuring the distance of the chain line, we can use steel tape or chain. Now how to take the measurements. What you have to do, you have first of all you have to fix your station. Suppose you want to measure your distance from A to B, so this one is your A station and you want to measure distance from A station to B station. Okay, so first of all you have to fix your stations. आपको सबसे पहले अपने स्टेशन फिक्स करने हैं. ओके, सो योर स्टार्टिंग स्टेशन इज ए, योर एंडिंग स्टेशन इज बी. आपको अपना स्टार्टिंग स्टेशन और कहाँ तक आपको मेजरमेंट करना है, so that the two stations you have to fix first of all. After you have laid the steel tape between A and B, you can get measurements to the corners of the house. Suppose we want okay, what is offsets? Okay, suppose this is our chain line. Suppose this is यहाँ पे हमारी chain है. Okay, जिस
लाइन पे हम चेन को रखते हैं, so that line is called as a chain line. Okay, so here it is your chain line. Okay, this one is your starting point and आपका एंडिंग पॉइंट यहाँ कहीं पे है. ओके, यहाँ पे चेन लाइन पे हर 5 मीटर के डिस्टेंस पर आपको एक टैग दिया हुआ है, जो अब मैंने आपको बताया था चेन के अंदर जो टैग होता है. ओके, तो दिस डिस्टेंस आर 0 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर. ओके, इस तरह से आपने आपकी चेन रखी हुई है. नाउ व्हाट इज ऑफसेट? ऑफसेट मतलब आपकी चेन लाइन से परपेंडिकुलर जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, सो दैट ऑब्स्ट्रक्शन आर कॉल्ड एज ऑफसेट्स. ओके, आप this one is a first corner of your building. Suppose here it is a building. Suppose ये आपकी चेन लाइन है और इस चेन लाइन के राइट साइड पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है एंड दैट इज अ बिल्डिंग. ओके, सो दिस वन इज द फर्स्ट कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग, दिस वन इज द सेकंड कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग. तो यू हैव टू मेजर दिस ऑब्स्ट्रक्शंस. ओके, आपको ये ऑब्स्ट्रक्शन मेजर करने हैं. सो दिस वन इज योर फर्स्ट offset, this one is your second offset. After you have laid a steel tape between A and B, you can get measurements to the corners of the house. Getting perpendicular measurements to the tape is easy. Those measurements are called as perpendicular offsets. Okay, मतलब आपके कोई obstruction है, आप जो सर्वे कर रहे हो उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है. सपोज देयर इज अ ट्री, देयर इज अ हाउस, suppose there is a shrub, there is a fencing, all these are obstructions. Okay, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन का आपकी चेन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे होगे, ओके, सो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर ऑफसेट. So these two corners of the house are known as perpendicular offsets. ओके, सो मिनिमम आपको बिल्डिंग का स्टार्टिंग कॉर्नर और एंडिंग कॉर्नर, सो यू हैव टू टेक मिनिमम 2 ऑफसेट्स ऑफ द बिल्डिंग. आपको अगर सपोज आपकी सर्वे लाइन के पास में कोई बिल्डिंग आ रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, सो यू हैव टू मेजर मिनिमम 2 ऑफसेट्स. Okay, so this one is your first offset, it is at 8 meter distance. This one is your second offset, it is at a 7 meter distance from chain line. This one is your chain line. Okay, here this one is your chain line. So your first corner of the building is at 8 meter, while your second corner of the building is at 7 meters. So these two are your offsets of the buildings. Okay, now you know this distance. अगर आपको ये पता है, अगर नहीं पता है तो you can measure that distance by the tape or chain. Okay, so suppose you know this distance कि आपकी building की length है 10 meter. Suppose यहाँ पे भी if it is a rectangular section, okay, तो यहाँ पे भी आपकी लेंथ क्या होगी 10 मीटर. सो यू कैन ड्रॉ दिस बिल्डिंग. आप यहाँ पे मतलब सर्वे लाइन में हमें क्या करना होता है, हमें हमारा जो ऑफसेट्स होते हैं वो ड्रॉ करने रहते हैं इन योर रिकॉर्ड बुक. ओके, सो यू कैन ड्रॉ दिस बिल्डिंग. ओके, सो दिस इज योर ड्राइंग शीट. व्हाट इज ड्राइंग शीट? आपको मेजरमेंट लेने हैं फील्ड पर, और वो मेजरमेंट लेने के बाद all this detail or all that detail you have to mention in a form of drawing. आपको ड्राइंग के फॉर्म में वो सभी डिटेल को मेंशन करना है. ओके okay? तो वो आपको ड्रॉ करना है ड्राइंग शीट के अंदर. सो दिस वन इज योर ड्राइंग सेट. यू हैव टू प्रिपेयर अ अप्रोप्रिएट स्केल. स्केल आपको अकॉर्डिंग टू योर ड्राइंग शीट आपको सिलेक्ट करना है. हियर सपोज योर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब आपकी जो चेन लाइन है वो चेन लाइन का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 mm लिया होगा इसने शायद स्केल. ओके, तो यू हैव टू सिलेक्ट द प्रॉपर स्केल एंड यू हैव टू मेंशन ऑल द डिटेल ऑन योर ड्राइंग शीट. ओके, मतलब ग्राउंड का 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑफ योर स्केल. यहाँ पे आप क्या करोगे, आपके ग्राउंड में के अंदर जो आपने डिस्टेंस मेजर किया है, यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस इन मीटर. ओके, तो उस मीटर वाले डिस्टेंस को आपको ड्राइंग शीट में छोटा सा ड्राइंग बनाए ना है. ओके, तो यू हैव योर स्केल इज 1 मीटर इन ग्राउंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इन अ ड्राइंग शीट. Okay, so these are two corners of your building.
सो यूज दी सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या होता है, जो 90 डिग्री जिसे हम मेजर करते हैं ना, दैट इज अ सेट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपको सेट स्क्वायर यूज करना है। ओके, यहाँ से आपका फर्स्ट योर फर्स्ट कॉर्नर इज एट 8 मीटर डिस्टेंस ऑन फील्ड। फील्ड पे आपका फर्स्ट कॉर्नर कितने मीटर डिस्टेंस पर है, 8 मीटर। But for drawing sheet, it is equal to 8 centimeter. Okay, so this one is your first corner. Second corner is at 7 meter. So you have to mark at 7 centimeter. चेन लाइन पे फर्स्ट कॉर्नर का डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या है, एट 25 सेंटीमीटर। सो दिस टू आर द कॉर्नर्स ऑफ योर बिल्डिंग। ये दो क्या क्या है आपकी बिल्डिंग के कॉर्नर्स। ओके, सो ये आपने ड्राइंग शीट के अंदर ड्रॉ किया है। दिस यू ड्रॉ इन द ड्राइंग शीट, और आपकी जो रिकॉर्ड बुक होगी, फील्ड बुक होगी, उसके अंदर ये चीज आपको ड्रॉ करनी है। Okay, now we know the what is the length of the building. Suppose that is equal to 10 centimeter. So, that is a 10 meter on field. Actually length is 10 meter. Field पे जो एक्चुअल बिल्डिंग है उसकी लेंथ क्या है, 10 मीटर, बट हमें ड्राइंग के फॉर्म में मेंशन करना है, तो that is equal to 10 centimeter. So this length is equal to 10 centimeter. This length is also is equal to 10 centimeter. तो use the set square. यहाँ पे 10 centimeter मार्क करो, यहाँ पे 10 centimeter मार्क करो, and join two end lines. ओके, तो नाउ यू कैन कंप्लीट द बिल्डिंग। मतलब आपने जो फील्ड पे मेजर किया, उसे आपने ड्राइंग के फॉर्म में यहाँ इंडिकेट किया। ओके, सो दिस इज अ चेन एंड टेप सर्वे। आप लोगों को फील्ड पे ड्राइंग मेजरमेंट लेना है, और वो मेजरमेंट आपको इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग यू हैव टू एक्सप्लेन ऑन ड्राइंग शीट। सो दिस इज अ बिल्डिंग। Okay, now the other offsets are tree, road. Okay, these are the other offsets. Okay, ये आपकी chain line है, उस this one is your first offset. ये आपका पहला offset है, that was the house. Okay, now the other offsets are tree. This one is first tree, second tree. This is a road. This is a shrub. Okay, fencing. All these are the other offsets. Okay, now you can take offsets to trees and around roads and etc. Okay, तो आप लोगों को trees, road, उन लोग उसके भी offsets लेना है। If the structure is a curve, you need to take offsets at close interval. Okay, अगर आपका जो offset है वो curve section में है, okay, तो आपको close मतलब जो पास वाला जो interval है वहां पे आपको offsets लेने हैं। That we will see in this video only how to take. ओके, हियर इट इज अ रोड, और वो क्या है, कर्व है। यहाँ से आपका रोड क्या है, कर्व है। तो अकॉर्डिंग टू कोइगुलेंट फिगर यू कैन हैव अ फ्यू परपेंडिकुलर ऑफसेट्स टू ट्रेस द कर्व लाइक दिस। ओके, ये आपको दिखा रहा है कि आपको कर्व पोर्शन के ऑफसेट्स कैसे लेना है। Okay, if there is a curve, so you have to take more and more offsets. Okay, so this first offset is at 9 meter, this offset is 9.5 meter, this offset is at 10 meter, और ये सारे जो points हो गए, all that points you have to join. Okay, तो उस सारे point अगर आप join करोगे तो आपको ये road का section मिलेगा। ओके, मतलब इफ देर इज अ कर्व ऑफसेट्स, अगर आपका रोड है और स्ट्रेट नहीं है, इट इज एन इन अ शेप ऑफ कर्व, तो यू हैव टू टेक मोर एंड मोर ऑफसेट। ओके, आपको पास पास में बहुत ज्यादा ऑफसेट्स लेने हैं। सो वी हियर वी हैव टेकन 9, 1 2 3 4 5 ऑफसेट्स। ओके, और ये सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा रोड सेक्शन। ओके, नाउ मार्क ऑल दीज पॉइंट्स। जो फील्ड के वो जो पॉइंट हमने देखे थे, तो वो थे फील्ड के पॉइंट। नाउ मार्क ऑल दैट पॉइंट इन अ ड्राइंग शीट। तो आपको ड्राइंग के फॉर्म में जो आपका फील्ड पे है, वही एक्चुअल आपको ड्राइंग के फॉर्म में यहाँ पे मिलेगा।
So these are the 5 offsets of a road: first, second, third, fourth and fifth. So these are the five offset of a रोड. फील्ड पे क्या था? इट इज इन मीटर. ड्राइंग पे हमें क्या लेना है? सेंटीमीटर में. बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है ना कि छोटी सी ड्राइंग शीट में हम मीटर में मेजरमेंट ले सके. तो दैट्स वाई हमें हमारे स्केल को कन्वर्ट करना है. हमें लार्जर स्केल को कन्वर्ट करना है स्मॉलर स्केल में फॉर द ड्राइंग पर्पज. Okay, so these are the uh, points of the offset or points of the for the road. So this is a road section जो आपको road section मिलेगा. Now what is 3 4 5 method? If you want to measure a right angle on a field, so you have to use 3 4 5 method, that is a based on Pythagoras theorem. So what we have to do, we have to take a tape. Okay, और हमें क्या करना है? 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर डिस्टेंस हमें फील्ड पे मार्क करना है. Okay, this is a 3 meter distance, 4 meter distance and 5 meter distance. Okay, so इससे हमें मिलेगा राइट एंगल ट्राइंगल. Okay, take a tape and mark 3 meter, 4 meter and 5 meter length in a order and straight the tape from those points to form a right angle triangle. Okay, to mark the 3 meter, 4 meter and 5 meter distance on a on your chain line. एंड नाउ फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल. आपकी जो टेप है उस टेप को ऐसे बेंड करना है एंड फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल. आपको उसी टेप से राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना है फॉर मेजरिंग द परपेंडिकुलर ऑफसेट. Okay, so this is a method. Okay, 3 meter, 4 meter, 5 meter. Okay, this is a based on Pythagoras theorem. तो यहाँ से exit you can measure at the right angle. You can measure the offset, but that is okay because हम अगर this method is very much tedious. Okay, तो हम लोग generally we are not going to use this method. हम लोग डायरेक्ट ही offsets measure कर लेते हैं because इसके अंदर बहुत टाइम लगता है. Okay, so just राइट एंगल फॉर्म करने के लिए वी यूज दैट मेथड. ओके, हमने वो मेथड यूज की थी बट दैट्स ओके. अगर आप डायरेक्टली भी ऐसे कर लोगे तो बहुत एरर विल बी लेस. ओके, बहुत कम एरर आएगी. सो दैट्स ओके. By ranging using 3 4 5 method we can obtain the perpendicular offsets length. तो यहाँ से हमें मिलेगा suppose it is a shrub और shrub का distance क्या है? On chain line the distance is 4 meter and the offset distance is 8 meter. This is a distance of offset. ये क्या होता है? Offset का distance है. Okay, this one is a distance of offset. इसे हम बोलते हैं offset.
एंड दिस इज अ linear distance on chain line. तो चेन लाइन पे आपका डिस्टेंस क्या है 14 मीटर और व्हाट इज ऑफसेट दैट इज इक्वल टू 8 मीटर. As I told you, that is a very much lengthy or tedious method. Okay, तो हम ये यूज नहीं करते हैं. Okay, again, this is your chain line, this is your offset or obstruction, or you want to take an offset. तो कैसे करना है? How to take an offset? ओके, सपोज अगर आपकी चेन अगर आपको आपने आपकी टेप ऐसे रखी है, सो आपका डिस्टेंस क्या आएगा? इट शोज 9 पॉइंट समथिंग, सपोज इट इज 9.5 और 9.7. ओके, सो द डिस्टेंस इज ग्रेटर. फिर जैसे जैसे आप इस टेप को घुमाते जाओगे, ओके, सो डिस्टेंस विल बी लेस. यहाँ पे आपका डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 9 मीटर. अगर आप यहाँ पे लाओगे तो इट विल बी ग्रेटर देन 9 मीटर. ओके, अगेन, ओके, यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या हुआ? 9.4 और 9.5. ओके, सो जो आपका मिनिमम डिस्टेंस होगा, योर टेप विल बी परपेंडिकुलर एट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द चेन लाइन. जो आपका मिनिमम डिस्टेंस है, ओके, दैट डिस्टेंस विल बी योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, देखो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा. ओके, so this least tape measurement distance over the chain line. Okay, this distance is greater than 9, this distance is also greater than 9. This one is a least distance, okay, or least measurements over the chain line. So this is your exact perpendicular offset. ये आपका exact perpendicular distance होगा, that is a least measurement over the chain line. Okay, so that will be a exact 9 meter. The tape indicate the least measurements of 9 meter by 2 meter of the chain length. Okay, chain length पे ये distance कितना है? 2 meter. If at 1 meter the distance is greater than 9 meter. At 3 meter distance is greater than 9 meter, but at 2 meter the distance is 9 meter, and that is a least measurement. Okay, so that's why you have to take this distance. Okay, so this is a easy method और हमें यही method use करनी है for our survey purpose. अगर आपके ऑफसेट की लेंथ, if your offset length is greater than 10 meter, तो you cannot go for this method. Okay, आपको ये method use नहीं करनी है if your offset distance is less than sorry greater than 10 meter. What is the reason? When we are getting perpendicular offsets more than 10 meter, the variation of the length shows while swinging the tape over. Because हम लोग कौन सी टैप यूज करने हैं? इनवार टैप. ओके, और वो क्या होगी? स्विंग होगी, बैंड होगी बीट से. सो for greater than 10 meter distance, we cannot use this method. Okay, so in that condition we can go for the oblique offset. So there are two types of the offset: perpendicular offsets and oblique offsets. Okay, again, this one is your chain line, this one is your A station, this one is your B station, this is your chain line, that is 0 to, suppose that is 0 to 23 meter. Okay, here we take one measurement from one chain length and another measurement from the another chain length.
ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक टू मेजरमेंट्स. हमें क्या करना है, हमें इंक्लाइंट ऑफसेट लेना है, that is or oblique offset or inclined or oblique offsets. Okay, so we have to take on one measurement at 3 meter and another measurement at 15 meter. Okay, so we have two measurements or two oblique offsets. First is at 17 meter, next is at 13 meter. The tree has 17-meter oblique offsets by 4 meter of the chain. Okay, chain line pe what is the distance? That is a 4 meter. Okay, and 13-meter oblique offset by the 14-meter chain. Okay, 14-meter chain के लिए distance क्या है? That is equal to 13 meter. Chain पे distance क्या है? 14 meter. And what is the distance from the oblique offset? That is equal to 13 meter. Further, when there are obstructs to get the perpendicular offsets, you can go for oblique offsets. Okay, in that condition also you can go for the oblique offsets. Now how to mark oblique offsets in a drawing sheet. आपको ड्राइंग शीट में oblique offset कैसे मार्क करना है. Okay, you have to use compass for that. So you can measure 17 centimeter by a compass according to the scale. We selected scale 1 centimeter is equal to 1 meter is on field is equal to 1 centimeter in drawing sheet. Okay, so our scale is 1 gem 100. Okay, to make the 70 meter of offset. तो आप लोगों को क्या करना है, कंपास से 17 सेंटीमीटर सिलेक्ट करना है. Now first offset were at first offset was at 4 centimeter, next offset was at 14 सेंटीमीटर. तो आपको आर्क ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर से और उसके बाद आपको आर्क ड्रॉ करना है 14 सेंटीमीटर से. Okay, you have to draw arc like this. Now what is the distance for second offset? That was the 13 centimeter. 13 centimeter कहाँ था? 14 meter on chain से. Okay, so you have to take measurement of 13 centimeter और again आपको 14 centimeter chain line पे रख के आपको second वाला arc draw करना है. Now you have to draw an arc of 14 centimeter point of the chain line as shown in the figure. Okay, जैसे हमने 4 centimeter on a chain line के लिए arc draw करा, the like same way we have to draw an arc for this 14 centimeter on chain line. This one is a second. Now हमें इन दोनों point को join कर लेना है. इस okay. Now you have to mark tree at this यहाँ ये जो intersecting point है वहां पे होगा आपका tree यहाँ पे होगा. Okay, now this is a distance of 3. ओके, सपोज आप लोगों ने ग्राउंड पेग यू इंसर्टेड ग्राउंड पेग एट स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, आपने एक पॉइंट पे आपकी ग्राउंड के अंदर पैग इंसर्ट की है. ओके, आपने पूरा सर्वे कर लिया बट देयर इज अ सम एरर इन योर सर्वे. आपको सर्वे फिर से करना है बट आप अगर आप ग्राउंड पे जाते हो तो देयर इज वहां पे आपकी पैग नहीं है. ओके, किसी ने आपकी पैग निकाल ली है तो व्हाट यू विल डू ना. तो क्या हम लोगों को सारे मेजरमेंट फिर से करने होंगे.
ओके, अगर आपको पैक की एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाती है, एग्जैक्ट जगह मिल जाती है, सो नो 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 नीड टू टेक मेजरमेंट्स अगेन। ओके, आप सिर्फ एरर क्या है यू कैन एबल टू फाइंड, लेकिन अगर नहीं है तो यू हैव टू रिपीट दैट सर्वे अगेन। So before starting the survey, you have to take some precautions. Now, what is time measurements? That we will see. ओके, व्हाट इज टाइम मेजरमेंट्स? टाइम मेजरमेंट क्या होता है कि वी हैव टू सिलेक्ट आवर स्टेशन। हमारा जो ए स्टेशन है, तो ए स्टेशन हमें ऐसे सिलेक्ट करना है कि उसके आसपास में कोई परमानेंट स्ट्रक्चर्स हो। सपोज देयर इज अ ट्री, देयर इज अ हाउस, देयर इज अ फेंसिंग, कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर हो, और उस परमानेंट स्ट्रक्चर से हमें क्या करना है, हम लोगों को डिस्टेंस लेना है कि हमारी पैग है, सपोज दिस वन इज योर पैग, this one is your peg. Okay, so from this tree, what is the distance of this peg? That is equal to 17 meter. From the fencing, what is the distance of your peg? That is equal to 6 meter. From the building corner, what is the distance? That is a 5 meter. Okay, तो हमने क्या किया, परमानेंट स्ट्रक्चर से देर आर थ्री परमानेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, ट्री है, बिल्डिंग कॉर्नर है और फेंसिंग है, वहां से हमारी पैग का डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया है। तो अगर इन फ्यूचर हमारी पैग वहां नहीं भी है और हमें देखना है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, तो हमें सिर्फ ये तीन मेजरमेंट्स ले लेने हैं और आपको वो एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा कि फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड योर वर्क और व्हाट वाज योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सर्वे। ओके, सो दैट नोन इज अ टाइम मेजरमेंट्स। रिमेंबर दिस। ओके, आपको वाइवा में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अ टाइम मेजरमेंट्स। सो दिस इज कॉल्ड एज अ टाइम मेजरमेंट्स। ओके, अगर हमारी पैग मिस भी हो जाती है, अगर हमारी पैग कोई ले भी जाता है, तो हम लोग इन ट्री से, फेंसिंग से और बिल्डिंग से अगर हम मेजरमेंट्स लेंगे, तो वी कैन एग्जैक्टली लोकेट दैट पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ओके, हम एग्जैक्टली उसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। सो दैट इज नोन एज अ टाइम मेजरमेंट। देखा, यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्टेंस ले लिया। वी टुक अ डिस्टेंस 7 मीटर फ्रॉम द ट्री, 6 मीटर फ्रॉम द फेंसिंग एंड 5 मीटर था ना, यस 5 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग कॉर्नर। तो हम लोगों को एग्जैक्ट पॉइंट मिला कि जहां हमारी पैग थी, इंसर्ट थी। सो हम अगेन वहां से हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारी क्या एरर आ रही है, दैट वी कैन मेजर। सो हमें ये प्रिकॉशन लेना है बिफोर स्टार्टिंग दी सर्वे वर्क। सर्वे वर्क स्टार्ट करने से पहले जब आप पहला पॉइंट स्टार्ट, जब आप फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करते हो, ए पॉइंट सिलेक्ट करते हो, तो यू हैव टू सिलेक्ट दैट पॉइंट फ्रॉम द मिनिमम थ्री परमानेंट स्ट्रक्चर्स। आपको उस पॉइंट का थ्री परमानेंट स्ट्रक्चर से डिस्टेंस लेना है, सो दैट दैट इज नोन एज अ टाइम मेजरमेंट। Now we will see what is the prospection diagram. Okay, so that we will learn about the prospection diagram. What is it?
ओके, यहाँ पे क्या है, जो हमारी लेफ्ट साइड है चेन लाइन की, उसकी जो डिटेल कवर करनी है, दैट वी विल कवर इन शेप. ओके, हमने क्या किया, हमारी बिल्डिंग के एक ही डायरेक्शन में लेफ्ट साइड के अंदर हमने चेन लाइन से डायमेंशन ले, बट वी हैव टू टेक द डायमेंशन इन ऑल फोर डायरेक्शन. हमें हमारे जो हाउस है उसकी चारे चार फोर डायरेक्शन में हम लोगों को डायमेंशन लेना है. तो सिमिलरली अदर थ्री साइड शुड हैव सेपरेट चेन लाइन. तो अदर थ्री साइड्स के लिए भी हम लोगों को सेपरेट चेन लाइन चाहिए. ओके, so because the chain line was only for this distance. Okay, हमारी जो chain line थी, that was only for this distance only. Okay, so now we need other three separate chain lines. Okay, और three direction measure करने के लिए we need other three separate chain lines. ओके, सो टू कवर द डिटेल्स ऑफ द मिडल ऑफ द लैंड, हमें क्या करना है, वी हैव टू चेक डिटेल्स फॉर द लैंड मिडल पोर्शन. ओके, मिडल पोर्शन की डिटेल हम लोगों को चाहिए. ओके, इट इज बेटर टू पुट द चेन लाइन अलोंग द डायगोनल डायरेक्शन एज वेल. तो हमें डायगोनल डायरेक्शन में भी चेन लाइन लेनी होगी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लोकेट द लॉन्गेस्ट चेन लाइन. ये इन सब में से लॉन्गेस्ट चेन लाइन कौन सी है, दैट वी हैव टू लोकेट. ओके, सो दिस विल बी योर लॉन्गेस्ट चेन लाइन. अगर आपका ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है, सो दिस वुड बी अ लॉन्गेस्ट चेन लाइन, दैट इज ए टू बी. जो इंक्लाइन डिस्टेंस होगा ना ए टू बी लाइन का, इट वुड बी अ लॉन्गेस्ट डिस्टेंस. एंड दिस दैट लाइन इज कॉल्ड एज बेस लाइन. इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा पूरे एरिया का, सो दैट लाइन इज कॉल्ड एज बेस लाइन. Now these are the other chain lines, that is AB, BC, CD. Sorry, AB is the longest line, that is a base line. Okay, so now other lines are AC, BC, BD and DA. These are the other chain lines. हर एक चेन लाइन पे हम लोगों को क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है, ऑफसेट मेजर करने हैं, ऑब्स्ट्रक्शन मेजर करना है. Okay, all the endpoints, they are A, B, C, and D. All are known as the main station. What is station? Station is a point जहां से हम survey work start करते हैं या तो finish करते हैं. So that point is known as the station. तो A, B, C, and D are our stations. All these are our stations. These are the main points, and all these main points are known as the stations. मतलब अगर आपकी डिटेल्स बहुत ज्यादा है, इन दिस मैप देयर आर ओनली वन हाउस, टू ट्रीज, वन shrub एंड फेंसिंग. ओके, सो डिटेल्स आर स्मॉल. बट इफ देयर आर सो मेनी डिटेल्स, उसके बीच में भी, दो चेन लाइन के बीच में भी अगर बहुत सी डिटेल्स है, तो इन दैट कंडीशन यू हैव टू सिलेक्ट द टाई स्टेशन. टाई स्टेशन मतलब क्या, मेन स्टेशन के अंदर वाले जो स्टेशन होते हैं, सो दैट स्टेशंस आर नोन एज द टाई स्टेशन. तो आपको टाई लाइन सिलेक्ट करनी है और टाई स्टेशन सिलेक्ट करने हैं कि जिसके ऊपर आप अगर जो बहुत ज्यादा डिटेल्स है, तो वो डिटेल्स आप ले सके. सो F and E are the tie stations or subsidiary stations, and FE is a tie line.
Okay, there is one more line. That line is known as a check line. Apart from all these chain lines, we have another one called the check line. Normally, check line is similar to tie line. चेक लाइन भी क्या होती है, चेन लाइन के अंदर वाली जो चेन लाइन होती है उसे कनेक्ट करती है. बट द डिफरेंस इज वी डू नॉट कलेक्ट डिटेल्स रिफर टू बी चेक लाइन्स. हम लोग चेक लाइन का यूज डिटेल कलेक्ट करने के लिए नहीं करते हैं. मतलब अगर अंदर वाले कोई ऑफसेट्स है तो चेक लाइन का यूज हम ऑफसेट्स मेजर करने के लिए नहीं करेंगे. सो वी डू नॉट कलेक्ट डिटेल्स बाय द यूजिंग ऑफ चेक लाइन. चेक लाइन का यूज हम डिटेल कलेक्ट करने के लिए नहीं करते. सो ऑल दिस लाइन यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज चेन लाइन, व्हाट इज टाई लाइन एंड व्हाट इज चेक लाइन. Okay, what is the function of check line? The main purpose of the check line is checking the accuracy of the field work at the drawing office. मतलब हमने जो शीट में ड्रॉ किया है ना पूरा ड्राइंग, तो उस ड्राइंग की एक्यूरेसी वी कैन चेक बाय द यूज ऑफ द चेक लाइन. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ चेक लाइन. हम क्या कर सकते हैं, हमारे पूरे ड्राइंग की हमने जो डिटेल है, उस डिटेल जो ली है, जो ड्राइंग किया है, उसकी एक्यूरेसी इफ यू वांट टू चेक accuracy of our field work. Okay, so then for that purpose we can use the check line. Okay, now bearing that we learn in compass survey. Okay. Okay, suppose you want to plot this drawing in your drawing sheet, तो आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, आपकी नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करनी है कि वेयर इज योर नॉर्थ. ओके, अगर आपको शीट में ये पूरा ड्राइंग करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंडिकेट योर नॉर्थ डायरेक्शन. आपके फील्ड पे नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी थी, और वही सेम डायरेक्शन यू हैव टू मार्क ऑन योर ड्राइंग शीट. ओके, और आपकी जो चेन लाइन है, ओके, दैट इज कॉल्ड ए बी, जो लॉन्गेस्ट चेन लाइन. ओके, तो उस लॉन्गेस्ट चेन लाइन का नॉर्थ से कौन सा एंगल है, एट विच एंगल योर लॉन्गेस्ट चेन लाइन इज इंडिकेटेड. ओके, वो आपको मार्क करना है ऑन ड्राइंग शीट. नॉर्थ और आपकी लॉन्गेस्ट चेन लाइन के बीच की बेरिंग और एंगल. Next, you can measure the length of the AD line to a compass according to the scale for the drawing mark and arc. Okay, आपकी एडी लाइन का डिस्टेंस क्या है, दैट डिस्टेंस यू हैव टू, एट दैट डिस्टेंस यू हैव टू मार्क एन आर्क. आपको आपको एडी लाइन के डिस्टेंस पर एक आर्क मार्क करना है फ्रॉम ए टू डी डिस्टेंस. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए टू डी लाइन? ओके, एट दैट डिस्टेंस यू हैव टू मार्क एन आर्क. Similarly, measure the BD length and to the compass and draw an arc to cut the arc drawn from A. मतलब B to D का आपने A to D का डिस्टेंस मेजर किया. नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम B to D and again you have to mark an arc. ओके, तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा डी. सो दिस इज योर डी पॉइंट. मतलब ये हमने क्या किया है, हमने फील्ड डिटेल को ड्राइंग शीट के अंदर इंडिकेट किया है. ओके, नाउ ओके, तो यहाँ पे आपको पूरा एरिया मिल जाएगा, ए बी सी डी. Okay, now these four these five are your chain lines. These are your chain lines. Okay, now you have to mark the check line. Check line का distance you know,
what is distance from B point, what is distance from for sorry, what is distance from B point at on AD line, and what is distance from B point on BA line. Okay, so you have to mark that 2 points. Now measure the length of the check line. Suppose that is equal to 10 centimeter. सपोज योर फील्ड लेंथ वाज 11 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो आपकी थोड़ी बहुत एरर रह गई है. ओके, आपके सर्वे वर्क में थोड़ी सी एरर है. इफ योर फील्ड लेंथ वाज 11 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपकी लेंथ आ रही है 10 सेंटीमीटर, तो क्या है, 1 सेंटीमीटर की एरर है. सो दैट यह हुआ आपका चेक. अगर थोड़ी सी एरर है देन इट इज ओके. बट सपोज आपकी फील्ड लेंथ है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपकी लेंथ आई 10 सेंटीमीटर, तो वो बहुत ज्यादा एरर है. ओके, सो योर सर्वे वर्क इज नॉट परफेक्ट. ओके, आपका सर्वे वर्क एक्यूरेट नहीं है, तो आपको वो फिर से करना होगा. ओके, if your field length is 11 centimeter, your sheet length is 10 centimeter, so your work is not accurate. Okay, तो आपको क्या करना है, फिर से फील्ड पर जाना है और फिर से आपको सर्वे वर्क करना है. Then we can start marking the features of the drawing. तो आपका ड्राइंग एक्यूरेट है. ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं. वेट, अभी लेफ्ट मत होना. आई हैव टू मार्क द अटेंडेंस, राइट? अटेंडेंस के बाद यू कैन लीव, यू मे लीव. If you have any questions, you can ask me. If you have any question regarding this, you can ask me. Anyone have any question regarding this experiment? मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट की लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप लोग फिर से देख लेना. और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. अगर हमारी कॉलेज स्टार्ट हुई तो हम लोग ये पूरा एक्सपेरिमेंट फील्ड पे करेंगे विद द यूज ऑफ आवर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? बिकॉज सर्वे एक्चुअली फील्ड पे ही होता है. यहाँ पे वीडियो पे समझना इट इज डिफिकल्ट, आई कैन अंडरस्टैंड. Okay, you may leave now. Thank you.